Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is memorandum writing. Let's see what is the definition of memorandum. A memorandum, the plural of this word is memoranda, is a short piece of writing generally used by the officers of an organization for communicating among themselves. This is why it is also called inter-office memorandum. The main purpose of a memorandum is to record or convey information and decision or to make short requests. Some organizations use the memo for short reports too. Reports in which an officer supplies certain data to another officer to enable the latter to take a decision. Occasionally, such a memo may also contain an analysis of data and the opinion and recommendations of the officer sending. To achieve its purpose, a memo is written in easy to understand language. Its style is like that of reports, objective, matter of fact, and lucid. No attempt is made to make an emotional appeal to the reader or to create a psychological impact on him. तो मेमो चूँकि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आपको फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, इनफॉर्मल नहीं होना और टू द पॉइंट बात करनी है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है. Plain and direct statement of facts are made to achieve all that is required. A memo plays a very useful role in an organization. It ensures quick and smooth flow of information in all directions. तो मेमो के ज़रिए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप इंफॉर्मेशन फौरी तौर पर जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, जो भी आप इतला देना चाहें. It also enables officers to maintain good business relationship. A memo will come to your aid when you wish to avoid coming into personal contact with certain colleagues. तो आप मेमो सेंड करके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उन तक भेज सकते हैं और आपको उनके साथ पर्सनल मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती. Another useful function of a memo is to establish accountability. Accountability का मतलब है एहतसाब, या बाद में किसी को अगर कोई बात कहे कोई कि मुझ तक ये बात नहीं पहुंची, तो मेमोरेंडम एक रिकॉर्ड होता है जिसके ज़रिए उसको ये बावर करवाया जा सकता है कि ये इत्तला उस तक पहुंचाई गई थी. Since it is a record of facts and decisions, you can turn to it in future if there is a need to find out who went wrong and at what stage. Some organizations insist that even small events and requests, telephonic conversations on official matters, etc., should be recorded in the form of memos. Many organizations use printed memo forms. One can quickly write the message and transmit it to the concerned officer. It takes comparatively less time to write a memo since it does not contain several details which a letter has. So memo is a little bit different from letter. तो इनके डिफरेंस पर भी हम बात करेंगे. Here is the format of a memo in front of you. आप देखें कि आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें. The following essential items of information must be given in a memo. The designation of the receiver. टू में उस बंदे का डेजिग्नेशन लिखा जाएगा जिसको ये मेमो सेंड किया जा रहा है. फ्रॉम में उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन आएगा जो ये मेमो सेंड कर रहा है. रेफरेंस ऑफिस फाइल नंबर होता है जिसके तहत उस मेमोरेंडम को सेव किया जाता है और डेट भी मेंशन करना ज़रूरी होती है. तो ये चीज़ें एक मेमो के फॉर्मेट का एसेंशियल पार्ट हैं. द डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, टू द डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, फ्रॉम, रेफरेंस, डेट एंड सब्जेक्ट. In printed forms, the name of the organization or the department concerned is written on the top in the middle of the page.
If copies of a memo are sent to the other officers, an indication is given at the bottom as in the case of letters. अगर आप इस फॉर्मेट को देखें तो लेफ्ट कॉर्नर में आपको CC लिखा नज़र आ रहा है. CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी. तो इट मीन्स कि एक सेम ऐसी ही कॉपी उस शख्स को भी सेंड की जा रही है जिसका डेजिग्नेशन या नेम इसके आगे मेंशन होगा. और उसके बाद जो सेंडर है उसका अपना नाम और सिग्नेचर बॉटम राइट कॉर्नर में मेंशन किए जाते हैं. द नेम the designation of the sender and receiver are given on the left hand side and the reference and date on the right hand side. The sender signs on the right hand side and if necessary his name is typed below his signature. If the memo is to be sent to the other officers, an indication is given on the left hand side. With the increasing use of computers in offices, the practice of sending a typed or word processed memo is on the wane. It is coming to an end. It means it is being replaced by emails. So आप समझ लें कि ये email की old form है जो कि हैंड रिटन फॉर्म है या टाइप्ड फॉर्म है जो कि ईमेल या ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से पहले ये बहुत ज़्यादा एक कामयाब प्रैक्टिस थी ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में रिकॉर्ड को मेंटेन करने की, इंफॉर्मेशन कन्वे करने की. तो अब इसकी जगह पर मोस्टली ईमेल ने ले ली है कि और इसके जो कि एक क्विकर मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन है. उसके अलावा समटाइम्स मेमोज आर क्लासिफाइड इनटू दी फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म. तो इसकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं मेमोज की. सबसे पहले आपके सामने लिखा गया है इंफॉर्मेशन मेमो. इट इज़ यूज्ड टू डिलीवर और रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस. फर्स्ट पैराग्राफ प्रोवाइड्स मेन आइडिया. Second paragraph expands on the details. Third paragraph outlines the action required. तो मेमोरेंडम की एक ख़ास बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि ये बहुत लेंथी नहीं होता. अब आप अपने मेमो की जो उसको सेट करते हैं पैराग्राफ्स की सूरत में, लेकिन ये पैराग्राफ्स भी लेंथी नहीं होते. दे मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 सेंटेंसेस. इससे ज़्यादा लेंथी नहीं होता. और सेकेंड टाइप ऑफ मेमो इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमो. सजेस्ट ए स्पेसिफिक एक्शन टू इम्प्रूव अ सिचुएशन. यानी किसी कंपनी को कोई सिचुएशन ऐसी का सामना है जिसमें उनको कोई सॉल्यूशन चाहिए उस सिचुएशन से निकलने के लिए. तो फर्स्ट पैराग्राफ स्टेट्स द प्रॉब्लम. सेकेंड पैराग्राफ एनालाइजेज द प्रॉब्लम. थर्ड पैराग्राफ मेक्स ए रिकमेंडेशन. यानी प्रॉब्लम है क्या और उसका कंपनी पर इम्पैक्ट क्या है. उसके बाद इसको लिए रिकमेंडेशंस आती हैं हायर ऑफिशियल्स की तरफ से कि इसको सॉल्व आउट कैसे किया जाए. व्हेन मेकिंग ए रिकमेंडेशन इंक्लूड नॉट ओनली द पॉजिटिव डिटेल्स बट ऑल्सो द ड्रॉबैक्स. तो एक कंप्लीट मेमोरेंडम, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोरेंडम वो होगा जिसमें मेंशन किया जाएगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और अगर कोई ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है तो उसको ओवरकम कैसे किया जाएगा. नेक्स्ट इज़ परसुएशन मेमो. इट इज़ यूज्ड टू एनकरेज द रीडर टू अंडरटेक एन एक्शन ही और शी डजंट हैव टू टेक. यानी किसी एक ऐसे काम के लिए आप अपने एम्प्लॉय को माइल करते हैं या उभारते हैं जिसके करने का वो ऑफिशियली पाबंद नहीं है या अब तक उसने नहीं किया. First paragraph begins with an agreeable point. Second paragraph introduces the idea. Third paragraph states benefits to the reader. And fourth paragraph outlines the action required. Fifth paragraph ends with a call to action. अभी रिसेंटली एक चीज़ बहुत ख़बरों में रही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस करवाया जाए. तो ऐसा ही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने उसमें करना चाहे कि उनके एम्प्लॉइज़ एक स्पेशल और एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड को फॉलो करें तो उसके लिए वो परसुएशन मेमो जो है इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं. इंटरनल मेमो प्रपोजल यूज टू कन्वे सजेशंस टू सीनियर मैनेजमेंट. अभी एक मेमो की जो क्वालिटी है वो ये है कि मोस्टली
ये इसके जो सेंडर्स होते हैं वो हायर ऑफिशियल्स होते हैं और रिसीवर्स जो हैं वो मोस्टली एम्प्लॉयज़ होते हैं। लेकिन इंटरनल मेमो जो प्रपोजल्स होते हैं वो मैनेजमेंट को भेजे जा सकते हैं एम्प्लॉयज़ की जानिब से भी। फर्स्ट पैराग्राफ स्टेट्स रीज़न फॉर राइटिंग, सेकेंड पैराग्राफ आउटलाइंस प्रेजेंट सिचुएशन एंड स्टेट्स राइटर्स प्रपोजल, थर्ड पैराग्राफ डिस्क्राइब्स एडवांटेजेस, फोर्थ पैराग्राफ मेंशंस एंड डिफ्यूजेस डिसएडवांटेजेस। यानी अगर कोई ऐसा ड्रॉबैक या अपरेंटली नज़र आ रहा है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। फिफ्थ पैराग्राफ एंड्स विद ए कॉल टू एक्शन। तो इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन अ मेमो। व्हेन यू आर राइटिंग अ मेमो यू शुड कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज यूज़ अ क्लियर एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइन। अभी मैं आपको कुछ सैम्पल मेमोज दिखाऊंगी तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ब्रीफ और टू द पॉइंट सब्जेक्ट लाइन को होना चाहिए। डू नॉट वेस्ट द रीडर्स टाइम बाय यूजिंग लेंथी मेमोज, बी क्लियर एंड कंसाइज। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लेटर और मेमो का एक डिफरेंस ये भी है कि मेमो बहुत शॉर्ट और टू द पॉइंट बात करता है। यूज़ द एक्टिव वॉइस, यूज़ द फर्स्ट पर्सन, बी फॉर्मल। यानी कोई इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं आएगी, आपने टू द पॉइंट बात करनी है। अवॉइड स्लैंग्स एंड फ्रेंडली वर्ड्स। वन शुड यूज़ ए केयरफुल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हैं उसमें एक लॉजिकल लिंक होना चाहिए। और कीप द पैराग्राफ्स शॉर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जहन में रखनी चाहिए कि पैराग्राफ्स हरगिज़ लेंथी नहीं होने चाहिए, वरना मेमो का मकसद ही ख़त्म हो जाता है कि आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिनिमम वर्ड्स में मिनिमम टाइम में कन्वे करना होता है। वन कैन यूज़ एनमरेशन फॉर दी पैराग्राफ्स। यानी अगर आपने अपने मेमो को पैराग्राफ्स की सूरत में अरेंज किया है तो आप उनकी नंबरिंग कर सकते हैं। यूज़ ऑफ बुलेट्स टू मेक पॉइंट्स। तो ये एक हाईलाइट करने का एक तरीका है कि आप जो मेजर पॉइंट्स हैं उनके साथ बुलेट मार्क्स बना दें। ऑलवेज एंड द मेमो इन कर्टियस वर्ड्स। अवॉइड रूड एंड थॉटलेस मेमोज। यानी बहुत अथॉरिटेटिव, बॉसी और रूड लैंग्वेज उसकी ना हो। इट डज़ नॉट नीड ए कम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर। तो लेटर लिखते हुए आपको याद होगा कि हम लेटर की एंडिंग जब करते हैं रिलेटिव्स के लिए तो उसमें योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंग सन या डॉटर मेंशन करते हैं, और अगर फॉर्मल भी लिख रहे हैं तो योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली। तो इस तरह का जो एक कम्प्लीमेंट्री क्लोजर है वो ज़रूरी नहीं होता मेमो में। प्रूफ रीड द कंटेंट बिफोर सेंडिंग। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने मेमो सेंड करने से पहले एक दफ़ा उसको प्रूफ रीड ज़रूर करना है कि ऐसा ना हो कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो जाए। Here comes the difference between a memo and a letter. Unlike a letter which can be used for external communication as well as internal, memos are only used फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। तो लेटर्स जो हैं वो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट जो है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को भी सेंड कर सकता है, लेकिन मेमो जो है वो विद इन अ कंपनी, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही इस्तेमाल होता है। तो ये इंटरनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। ये हैं कुछ सैम्पल मेमोज आपके सामने। जिस तरह हमने फॉर्मेट में देखा था कि द नेम ऑफ द कंपनी इज़ मैंशनड ऑन द टॉप ऑफ द पेज इन द मिडल। तो यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड द नेम ऑफ द कंपनी रियाज स्टील कंपनी लिमिटेड, और उसके नीचे इंटर ऑफिस मेमोरेंडम लिखा गया है। फिर आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट the designations of the sender and the receivers have been given in the left top left corner, and reference and date have been mentioned in the top right corner. Then comes the subject. See how brief the subject is. परचेज ऑफ ऑफिशियल चेयर्स। तो एक नज़र आप डालते हैं सब्जेक्ट के ऊपर और आपको मेमोरेंडम का मकसद समझ आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा घुमा फिराकर और बीटिंग अबाउट द बुश जो है उसको अवॉइड किया जाता है। एज डिज़ायर्ड द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 300 ऑफिस चेयर्स हैज़ बीन प्लेस्ड with Shinewell Furniture Mart, Lal Mill Chowk.
The chairs will be supplied in 2 lots of 150 each on 23rd and 30th June. तो ये एक मुख्तसर सा मेमो है जिसमें ऑफिस चेयर्स की परचेज़ की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो परचेज़ ऑफिसर दे रहा है ऑफिस मैनेजर को। और आप अब बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर देखें तो सीसी किया गया है इसी मेमो को फाइनेंस ऑफिसर को, कि फाइनेंस ऑफिसर भी इस मेमो की एक कॉपी रिसीव करेगा और अपने रिकॉर्ड में रखेगा। सेंडर का नेम मेंशन किया गया है बॉटम राइट कॉर्नर में। तो एक दूसरा सैम्पल देखिए जो कि लायलपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड के लेटर हेड पे लिखा गया है, इंटर ऑफिस मेमोरेंडम मेंशन्ड है। अगेन द रिसीवर इज़ जनरल मैनेजर एंड द सेंडर इज़ द प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट। तो जनरल मैनेजर हायर ऑफिशियल है, अब ये प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट उसको जो मेमो सेंड कर रहा है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट, जैसा कि इसके सब्जेक्ट से भी आपको समझ आ रहा होगा। रेफरेंस एंड डेट यू कैन ऑल्सो सी इन द टॉप राइट कॉर्नर। तो सब्जेक्ट है डैमेज बाय फायर। यू कैन रीड इट इन योर ओन एंड यू विल कम टू नो दैट दिस इज एक्चुअली अ रिपोर्ट अबाउट a department that caught fire, and an estimate of the damage has been sent to the higher official who is the general manager of the company, and the sender has mentioned his name in the bottom right corner as Ghulam Murtaza. So Mr. Ghulam Murtaza is the production superintendent, and no copy has been sent to any other person. So you see that CC side or the bottom left corner is empty here. So this is all, and if you have any questions please don't hesitate to ask. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.